Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Bushra and I am here again with another lecture of chapter 10 FSC part 2 chemistry alkyl halides. Student, this is the most important chapter of chemistry second year because the short questions and the long questions must be included in the paper from this chapter. So, today we will discuss and we will start the chapter 10 alkyl halides. In the first introduction, you can see that it is saying that halogen derivatives of alkanes are called haloalkanes. So, students, the alkanes which have the saturated hydrocarbons and which fully satisfy the valency of carbon by single bond. Whenever we replace the H of the halogen with the H of the alkane with a halogen, then these compounds of alkane, the derivatives of alkane and the halogen derivatives of alkane are called the haloalkanes. So these halogen derivative of alkanes can be mono, di or tri depending upon how many halogen groups are attached to the alkane molecule by replacing one hydrogen, two hydrogen or three hydrogen. If it is placing one hydrogen with a halogen group, then this is called a monohaloalkane. When it is replacing the two halogen group by the replacing the hydrogen with the halogen, then this is called the dihaloalkanes. The three halogen groups are attached by replacing the three hydrogen atom, then this is called a trihaloalkane. So, halogen derivatives of alkanes are called haloalkanes. They may be mono, di, tri, or polyhaloalkanes depending upon the number of halogen atoms present in the molecules. So, in these mono, di, trihaloalkanes, monohaloalkanes are called the alkyl halides. What are called? These are called the alkyl halides. Their general formula is or X. This is showing a halogen which can be fluorine, chlorine, bromine or iodine, and R can be methyl, ethyl, propyl, butyl, etc. So monohalocanes or alkyl halides are further classified in primary, secondary and tertiary alkyl halides. Student must note that here in paper there is a question, a short question. Differentiate between primary, secondary and tertiary alkyl halides or define primary, secondary and tertiary alkyl halides. So in the next lines we will study what are the primary, what are the secondary and what are the tertiary alkyl halides. So monohaloalkanes or alkyl halides are further classified into primary, secondary or tertiary alkyl halides depending upon the type of carbon atom bearing the halogen atom. So it is saying that कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स को कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हो? इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस कार्बन एटम ने जो है हैलोजन एटम को जोड़ा हुआ है अपने साथ. In a primary alkyl halide, halogen atom is attached with a carbon which is further attached to one or no carbon atom. So, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आप क्या लिखेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होता है जिसमें हैलोजन किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं होता, ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होता है. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाएगा? जैसे कि हैलोजन क्लोरीन अटैच है एक कार्बन एटम के साथ जिसके साथ तीन हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, बट लेकिन कोई और जो है उसके साथ कार्बन अटैच नहीं है. ठीक है. अब दूसरे में आप देख रहे हो क्लोरोईथेन. अब इसमें क्या है कि हेलोजन एटम जो क्लोरीन है वो उस कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ फर्दर एक कार्बन अटैच है. और आपके पास तीसरी जो आती है एग्जांपल जिसमें आपके पास क्या है कि हेलोजन एटम एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ मज़ीद एक चेन में जो है वो आपके पास CH2 CH3 अटैच है. यानी आपके पास जो
हेलोजन एटम अटैच हो कार्बन के साथ, डायरेक्टली अटैच हो, उसके साथ फर्दर जो है वो एक कार्बन अटैच होनी चाहिए। ठीक है। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन है तो यहाँ पर मैम तो 2 कार्बन अटैच है। नहीं, जो डायरेक्टली अटैच है कार्बन, उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन आगे अटैच है क्लोरोप्रोपेन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो है उसके साथ CH2 यानी CH2 क्लोरीन, ठीक है, उसके साथ आगे मज़ीद जो है वो आपके पास एक ही कार्बन अटैच है। अगर यहाँ पर H2 की जगह सिर्फ एक H होता और एक कार्बन नीचे की तरफ एक चेन की तरीके से बाहर निकली होती, तो यहाँ पर आप कह सकते थे कि वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, वो फिर प्राइमरी नहीं रहता। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो मज़ीद जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो या किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो। अब आते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिनमें हेलोजन एटम जो है वो किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि फर्दर अटैच होती है दो मज़ीद कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली का नाम जो है वो बार बार आ रहा है कि डायरेक्टली जो है वो दो कार्बन एटम के साथ अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन एटम उसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन में हेलोजन जो है क्लोरीन वो उस कार्बन के साथ अटैच है जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर दो जो हाइड्रोजन थे उसको हमने रिप्लेस करके यहाँ पे मज़ीद हमने क्या कर दिया, दो अटैच कर दिए कार्बन एटम और उनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। तो डायरेक्टली हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ मज़ीद जो है वो 2 कार्बन एटम अटैच हैं। इसी तरह हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन है, यहाँ पर भी क्लोरीन ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके आप देख सकते हो लेफ़्ट एंड राइट साइड पर 2 कार्बन एटम अटैच हैं। तो ये भी आपके पास सेकेंडरी कार्बन एटम आ गया। सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच होगा तो उनको बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। अब आते हैं नेक्स्ट, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन एटम इज़ अटैच्ड टू अ कार्बन एटम विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। कि आपके पास क्या होगा कि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे उनमें आपके पास कार्बन एटम किसी ऐसे हेलोजन एटम किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि मज़ीद 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे। जैसे आप देख सकते हो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में क्लोरीन एटम एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ मज़ीद जो है वो 3 कार्बन एटम अटैच हैं। अब इसमें हमने क्या किया, हमने जो एक हाइड्रोजन सेकेंडरी में था ना उसको भी ख़त्म कर दिया है, उसको रिप्लेस करके हमने मज़ीद एक जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा दिया है, मिथाइल लगा दिया है। तो ये क्या बन गई, टर्शियरी कार्बन एटम बन गई और टर्शियरी कार्बन एटम के साथ जो हेलोजन अटैच है वो सारा मिला के आपके पास क्या आ गया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई क्यूरी हो, कोई आपको सवाल समझ ना आ रहा हो या किसी में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।